Mr. Shashank Asai, can you tell me briefly about yourself? Whatever important points you would like to tell them, that alone you tell me now. Because we're want of Yes, time. Yeah, yes. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Shashank Praveen Rao Asai. I am from Wardha, Maharashtra. I have completed my graduation Bachelor of Commerce from Rashtra Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University. After graduation, I have completed my MBA with dual specialization, Finance and Marketing from Rashtra Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University. I am from nuclear family. In my family, we are four members: mother, father, my younger sister, and me. And my hobbies are playing cricket and cooking, sir. good, very good. Um, Now, please tell us about your achievements during college days. सर कॉलेज में मैंने हेल्कन प्रोग्राम हुआ था, वो जो स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है ना सर, तो उसमें मैंने लीड किया था सर टीम। Hmm. और सर Hmm. अंडर 19 क्रिकेट टीम का भी कैप्टन था, तो मेरी टीम फाइनल में गई थी, तो मैं रनर अप रहा था सर। फाइनल में हार गए थे, रनर अप रहा था मैं सर। Good, excellent. Now, what do you think are the 5 C's of credit management? सर कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल एंड कंडीशन सर। Good. Now, have you availed home bank loan? नो सर। Then you are having account with which bank? सर SBI, स्टेट बैंक। Very good. So, what is the difference between public sector banks and private sector banks? सर पब्लिक सेक्टर बैंक तो नॉर्मली उनके जो मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो तो सबसे पहले कम रहती है सर। प्राइवेट सेक्टर बैंक में सर सबसे ज्यादा हाई होती है सर, मतलब उनका मिनिमम बैलेंस ही 5,000 10,000 होता है। वही For पब्लिक custom सेक्टर में सर। for customers in respect of SB account, current account. Okay. यस Then सर। जिन सर प्राइवेट बैंक सर प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, वही प्राइवेट सेक्टर बैंक सर कस्टमर को सर्विस देने में ज्यादा बिलीव करते हैं सर। good, very good. Then एंड सर बस सर अभी याद नहीं आ रहा अभी सर। majority shares are held by government in public sector banks. In the case of private हाँ, sector banks, majority shares are held by private people. And yes, sir. the public sector public sector banks and these private sector banks, they will have to give 40% of their total adjusted net bank credit as priority sector. Good, very good. Yes, Now, what is the difference between small finance banks and our commercial banks? सर स्मॉल फाइनेंस बैंक सर उन्हें 200,000 करोड़ की कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। 200 crores, यस सर। 200,000, like 200 crores. यस सर 200 करोड़ सर। सर आपने दूसरा कौन सा बोला, पब्लिक सेक्टर बैंक? No, no. Difference between scheduled commercial bank. Scheduled शेड्यूल commercial कमर्शियल bank बैंक। and scheduled commercial bank minimum 500 rupees capital. आजकल यस सर। minimum 500 यस rupees सर। capital. इसका अलावा डिफरेंस हाँ सर। प्रायोरिटी सेक्टर हाँ। में शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स 40% देना पड़ेगा एंड यस सर एंड स्मॉल फाइनेंस RRB बैंक को 75%। small finance bank 75% देना पड़ेगा. यस सर। Small finance banks have been opened with an idea of more of financial inclusion. यस सर। Our scheduled banks are also aiming at um, financial inclusion, but small finance banks do it on a large scale. यस सर। Good, excellent. Now, why should we select Sasham? सर मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड, तो मेरा सर पूरा कॉमर्स का रहा है। जो मैंने बीकॉम किया पहले ग्रेजुएशन में, देन अभी एमबीए पूरा फाइनेंस का रहा है, इसीलिए सर। और मुझे जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो समझ है सर, इसके लिए भी मैं बेस्ट हूँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बारे में कुछ बात कीजिए.
सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर एक एक्सपेंडिचर साइड होता है एंड एक इनकम साइड होता है, जो डेबिट साइड होता है। एक्सपेंडिचर साइड सर डेबिट साइड होता है एंड इनकम साइड क्रेडिट साइड होता है सर। एक्सपेंडिचर साइड डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। उसमें सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में सर डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स आते हैं। वही एक्सपेंडिचर में सर सैलरी, देन स्टेशनरी आते हैं, रेंट आता है सर, देन सर सर इतना आता है। वही इनकम साइड सर रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड आते हैं सर। इनकम साइड में आपको सेल्स सेल्स तो आपको उधर ही आ गया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया होगा। अदर यस सर। क्रेडिट्स, other incomes, if any, may by way of rent, etc., or other service charges, if any, that it may come under profit and loss account. Taxes will be shown under the debit side, whatever it is. Okay, good. No problem. Then, next question for you. See, in the case of standard assets, agricultural advances में कितना प्रोविजन देना पड़ता है? एग्रीकल्चर में सर 18% सर। 0.25%। आपने क्वेश्चन को ठीक से सुना नहीं। हमने पूछा कितना प्रोविजन देना पड़ेगा, एन अकाउंट स्टैंडर्ड असेट हो गया तो। स्टैंडर्ड असेट का मतलब एनपीए नहीं है। एसएमपी अकाउंट यस में भी 100 रुपया हम लोग का एग्रीकल्चर एडवांस होगा तो हम लोग 0.25 रुपया प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस सर। सिमिलरली कमर्शियल रियल एस्टेट होने से कितना परसेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा? 1%। सर ये सब आप वन पढ़ा परसेंट ये सब आप पढ़ा नहीं है। नहीं सर। रेजिडेंशियल हाउसिंग होने से 0.75%, मतलब 100 रुपया एडवांस होने से 75 पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदर्स को 0.40%, 40 पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबस्टैंडर्ड होगा तो सिक्योर्ड होने से 15%, अनसिक्योर्ड होने से 25%, डाउटफुल असेट 1 ईयर का अंदर होने से 25%, 1 to 3 years होगा तो 40%, 3 years एक्स्ट्रा होगा तो 100%, लॉस असेट्स होगा तो 100% प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का अवार्ड्स का बारे में कुछ बताइए। सर पंजाब नेशनल बैंक ने सर अभी इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड जीता है सर। और सर उनका सेकंड अवार्ड सर तो ट्रांस यूनिट सिबिल अवार्ड जीता है सर हम्म। उन्होंने। हम्म। और क्यों याद रखा नहीं है? ये तो जरूर पूछेगा, याद है आपको? अब तो प्रिपेयर करना है ना, यस सर। प्रिपेयर कीजिए। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या चीज में करते हैं? सर पीएनबी। हाँ, पीएनबी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या करते हैं? सॉरी सर, ये भी नहीं पढ़ा मैंने। पढ़ा नहीं? सीएसआर एक्टिविटीज नहीं सर। पढ़ पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए। उन लोग यस क्या सर। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देता है, इसमें इनका फिनटेक इनिशिएटिव्स क्या होता है? पहले इसको क्लिक करना। हम्म, अच्छा, ये इसमें जुलाई 2024 का आप इको लेंस भी पढ़ना है। अभी इन्फ्लेशन रेट कैसे चलता है हम लोग का कंट्री में? सीपीआई इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन सर वो तो आरबीआई डिसाइड करते हैं रेपो रेट थ्रू सर। 5.08। हाँ सर, अभी तो रिटेल इन्फ्लेशन सर ये, ये 5.08% चालू इसमें दिया है, ये सब पढ़ लीजिए। ठीक है। है। जी सर। अच्छा जी, आपको पॉजिटिव पे सिस्टम का बारे में जानते हैं? नो सर।
पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या होता है, 5 लाख का ऊपर में चेक इशू करने से उसका डिटेल्स हम लोग बैंक को देना पड़ेगा थ्रू SMS और थ्रू ईमेल और थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, सो दैट जब वो चेक आएगा उस समय पर बैंक ने उसको वेरीफाई करके पेमेंट करेगा। ओके सर। करेक्ट? सर या, गुड। देन हमारा यूनियन मिनिस्टर 5 आदमी का नाम बता दीजिए, वो क्या क्या पोर्टफोलियो देख रहा है उसको भी बता दीजिए। सर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, देन रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, देन हम्म एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर शिवराज सिंह चौहान, MSME मिनिस्टर जीतन राम मांझी, हम्म अच्छा। फाइनेंस मिनिस्टर सर निर्मला। पंजाब नेशनल बैंक में हमारा गवर्नमेंट को कितना परसेंट शेयर होता है रफली? 73% है सर। हाँ, 70% का ज्यादा होगा। गुड, आपने सही बता दिया। अच्छा, आपने डेफिनेशन ऑफ मीडियम एंटरप्राइज को दे दीजिए। सर डेफिनेशन ऑफ मीडियम एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइज, सॉरी सर, मीडियम Invest, एंटरप्राइज। investment in plant and machinery should be less than 50 crores and turnover less than 250 crore. यस सर। आपने वो CGT MSC का बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? नहीं सर, उसके उसके बारे में मैं कंफ्यूजन हूँ सर, क्या है वो मुझे सर पता ही नहीं चला वो क्या है CGTMSC। तो ये एक वीडियो भी डाला है ना हमने। मैंने सर हेलो, ढूंढा पर मिला ही नहीं सर। नो नो, एक वीडियो डाला है, उसमें आपको कल 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 तो डाला है, उसको पूरा देखने से तो आपको पता हो जाता है। अभी हम क्या करेगा, आपको ये ये वाला सब अभी आपका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते। ओके सर। अभी इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? यस सर। ओके, बेस्ट विशेस, थैंक यू, थैंक all the best, go with confidence, do well, come with happiness, always be यस सर। happy. Thank you. यस सर। थैंक यू।